Hello and welcome. My name is Manish Katiyar, Assistant Professor, Axis Institute of Planning and Management, Kanpur. Now, today's topic is Information Technology Act. In earlier session, we have discussed majority of the definitions of the IT Act. Now, remaining definitions and penalties of the IT Act we will discuss in this particular lecture. So, IT Act, under this IT Act we are going to discuss now certifying authorities and penalties for various crimes which are mentioned in IT Act. Let us move. Firstly, we will take some definitions which was not or which could not be covered in last lecture. Now, secure electronic record. I hope you must have aware the basic objective of the IT Act. In our earlier lecture, we have understood that this IT Act applies whole of India except the following, in which I have already specifically mentioned to you that IT Act does not apply on will, on trust, NI Act. These were the certain examples of the non applicability of the IT Act, and there was certain definitions which was authentication of electronic record, fixing of electronic records. Now, we will discuss secure electronic records and secure digital signature. In earlier lecture, I have already explained you that what is the digital signature means. Digital signature is nothing, not a new thing. It is just like a code number or password which you simply affix at whenever you have to submit your document with the authorities. Authorities may be your higher authorities or a government authorities. Now, secure electronic record and digital signature, where any security procedure has been applied to an electronic record at a specific point of time, then such record shall be deemed to be a secure electronic record from such point of time to the time of verification. Secure digital signature, each explanation given. If by application of a security procedure agreed to by the parties concerned, it can be verified that digital signature at the time it was fixed was unique to the subscriber. Fixing it, point number B, capable of identifying subscriber created in a manner or using a means under the exclusive control of the subscriber and is linked to the electronic record to which relate in such a manner that if the electronic record was altered, the digital signature would be invalidated, then such digital signature shall be deemed to be a secure digital signature. Simply ये बात कह रहे हैं, जब भी कोई डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करना है तो कह रहे जब भी आप किसी भी डॉक्यूमेंट को सबमिट करेंगे तो उस डॉक्यूमेंट को डिजिटली साइन करेंगे. अब ये डिजिटली सिग्नेचर जो आपने किया है ये सिक्योर है कि नहीं उसके बारे में बात करी जा रही है. बस सिंपल सी बात ये है कि ये ऐसा तो नहीं कि जब डेटा का ट्रांसमिशन हो रहा हो तो रास्ते में किसी सर्वर पे जाने से पहले उसके संग कोई ऑल्टरेशन हो गया, कोई छेड़छाड़ करी गई, कुछ बदलाव किया गया, उसके बारे में बात हो रही है. तो ऐसा तो नहीं है. कहना अगर कुछ ऑल्टरेशन है, इफ़ देयर इज सर्टेन ऑल्टरेशन in a document which is forwarded to one place to another place through electronic medium, if there is a alteration then in that case that digital signature will be invalidated. ये यहाँ पे बात बताई गई है. आप देखते होंगे अक्सर आपने देखा होगा जब भी आप कोई मेल फॉरवर्ड करते हैं तो आपके सेंट में पड़ी रहती हैं, सालों साल पड़ी रहती हैं. आप देख सकते हैं उसको 2000 जैसे right now there is year 2021,
in my email ID I can simply access the mail which I have forwarded in the year 2010. तो जब एक कॉपी आपके पास रहती है तो आप वेरीफाई कर सकते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं जो चीज़ आपने भेजी दूसरे के पास पहुंची वहाँ पे कोई ऑल्ट्रेशन तो नहीं हुआ है. अगर ऑल्ट्रेशन हुआ तो डिजिटल सिग्नेचर इनवैलिडेट हो जाएगा. इफ डिजिटल सिग्नेचर इज इनवैलिडेट देन डॉक्यूमेंट इज इनवैलिडेट. सिंपल. नेक्स्ट, regulation of certifying authorities. Certifying authorities means the authorities who issue the digital signature. Function of controller: supervise the activities of certifying authorities and also certify their public keys. दो की पेयर होते हैं, प्राइवेट की एंड पब्लिक की. Lay down the standards that the certifying authorities follow, specifically the followings: qualification, experience, requirement of employees of all certifying authorities, condition that a certifying authority must follow for conducting business, the content of the printed, written and also visual material and advertisement is part of the digital signature, and the public key, the form and content of digital signature, the form and manner in which certifying authority maintain accounts. Simply NSDL आपने नाम सुना होगा, जो कि पेन बनाने का काम भी करती है. वही अथॉरिटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है जो डिजिटल सिग्नेचर बनाने का काम करती है. अब अथॉरिटी तो एक जगह बैठा, न्यू दिल्ली में बैठा हुआ, लेकिन किसी को कानपुर में, किसी को लखनऊ में, वाराणसी में, गोरखपुर में अपना डिजिटल सिग्नेचर बनवाना है तो क्या वहाँ दिल्ली तक थोड़ी नहीं जाएगा. तो सर्टिफाइंग अथॉरिटी ने जिसको अथॉरिटी दे रखी है उसके पास जाके वो अपना डिजिटल सिग्नेचर जनरेट करा सकता है. लेकिन जो सर्टिफाइंग अथॉरिटी ने जिसको अपॉइंट किया उसकी क्या क्वालिफिकेशन होगी उसके बारे में यहाँ पे इस एक्ट में बात करी जा रही है. नेक्स्ट, facilitate the certifying authorities to establish an electronic system either solely or jointly with other certifying authorities in regulation. Its regulations मतलब अगर कोई सर्टिफाइंग अथॉरिटी जैसे NSDL है, उसने वाराणसी या गोरखपुर या लखनऊ में कोई अपना सेंटर ओपन किया, तो वो सेंटर क्योंकि सिक्योर डेटा चाहिए, कुछ टेक्निकलिटीज़ इन्वॉल्व होती हैं, तो उसकी हेल्प के बारे में बात, किसी टेक्निकलिटीज़ को कैसे फॉलो किया जाना उसके बारे में बात हो रही है. स्पेसिफाई द मैनर इन विच द सर्टिफाइंग अथॉरिटीज डील विद द सब्सक्राइबर्स. सब्सक्राइबर मीन द पर्सन हु हैज़ अप्लाइड फॉर ऑब्टेनिंग डिजिटल सिग्नेचर. Resolve any conflict or of interest between the certifying authorities and the subscriber. Next, maintain a database containing the disclosure recovery of every record of every certifying authority will with all the details as per regulations. Further, this database is accessible to the public. Controller to act as a repository. रिपोजिटरी, देखिए आपने एक वर्ड सुना होगा डिपॉजिटरी एंड सेकंड वर्ड इज रिपोजिटरी. डिपॉजिटरी क्या होता है? डिपॉजिटरी इज अ पर्सन हु रिसीव द डॉक्यूमेंट्स. सपोज हमने अपने डॉक्यूमेंट किसी अथॉरिटी के पास जमा किए, जिसके पास जमा किए वो डिपॉजिटरीज हो गई. अब मैं वो डॉक्यूमेंट्स अपने वापस लेके आ रहा हूँ, इस एक्टिविटी को रिपोजिटरी बोलते हैं. तथा कंट्रोलर टू एक्ट एज ए रिपोजिटरी. अब किसी डायरेक्टर ने अपने डॉक्यूमेंट सबमिट किए, अब वो कह रहा है कि सर मेरा टेन्योर ख़त्म हो गया, मेरे डॉक्यूमेंट्स वापस करिए, वो आधार और पैन वगैरह ITR वगैरह लगता है, वापस करिए. द कंट्रोलर विल मेक यूज़ ऑफ सिक्योर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड ऑल्सो प्रोसीजर्स. Observe the standard that the central government prescribe to ensure the secrecy and also the security of the digital signature. कहीं ऐसा ना हो कि मैंने अपने डिजिटल सिग्नेचर बनवाने के लिए जो डॉक्यूमेंट सबमिट किए उन्हीं डॉक्यूमेंट के बेसिस पे किसी और के डिजिटल सिग्नेचर भी इशू हो गए, यानी कि फ्रॉड की बात हो रही है. और हम लोग फ्रॉड कभी पढ़ते नहीं हैं, इसलिए आपको लीगली सब चीज़ों को समझना है, ये यहाँ पे बताया जा रहा है. The controller will maintain a computerized database of all the public keys. Further, he must ensure that the public keys in the database are available to any member of the public. License to issue digital signature certificate. Subject to the provision of section 2, any person can apply to the controller for a license
टू इशू डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, DSC। बहुत ध्यान से सुन लीजिए, समझ लीजिए, ये जो थ्योरीज हैं इनको समझना है और डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट को समझना है। 1 2 3 कैटेगरी समझनी है हमको। और ये जो डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट होते हैं सिंपली पेन ड्राइव फॉर्म में आपको दिए जाते हैं, ये ध्यान रखिएगा। आगे, अ कंट्रोलर कैन इशू अ लाइसेंस अंडर सबसेक्शन 1 ओनली इफ द एप्लीकेंट फुलफिल ऑल द रिक्वायरमेंट्स। The central government specifies requirement with respect to qualification, expertise, manpower, financial resources, and also infrastructure facilities for the issuance of the digital signature certificate. A license granted under this section is valid for the period that the government specifies. Simply जब हम DSC के लिए अप्लाई करते हैं डिजिटल सिग्नेचर 1 साल 2 साल और 3 साल के लिए मिलते हैं, फिर उसके बाद आपको रिन्यू कराने पड़ते हैं या रीजनरेट करवाने पड़ते हैं। ठीक, वैलिड फॉर द पीरियड, नॉट ट्रांसफरेबल और इनहेरिटेंस। सपोज किसी पर्सन ने अपने डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट बनाया तो वो उसी का ही रहेगा, वो अपना DSC सिंपली सिग्नेचर है, वो सिग्नेचर तो ट्रांसफ़र कर ही नहीं सकते, ना इनहेरिटेड मतलब गिफ्ट में भी नहीं दे सकते, अपनी विरासत में भी नहीं दे सकते, नहीं दे सकते। सिग्नेचर आपका है, आपके पास रहेगा, एक्सपायर हो जाएगा तो रिन्यू कराइए। पर्सन अगर डिसीज है, उसकी डेथ हो जाती है, तो ऐसा नहीं कि उसके रिलेटिव, उसके फैमिली मेम्बर्स उसके डिजिटल सिग्नेचर को यूज़ करें, नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जैसे ही पर्सन की डेथ होगी उसको डेथ सर्टिफिकेट बनवाना होगा उसके असेंडेंट या डिसेंडेंट को, तो आपका DSC इनवैलिड हो जाएगा। नॉट ट्रांसफरेबल और इनहेरिटेंस, सब्जेक्ट टू द टर्म्स एंड कंडीशन दैट द रेगुलेशन स्पेसिफाई। वही एक बात, रेगुलेशन मतलब अंडर द एक्ट, IT एक्ट, जो भी रेगुलेटरी अथॉरिटी सेंट्रल गवर्नमेंट है वो जो भी रूल्स आगे फर्दर बनाएगी उसको फॉलो करना है हमको। नेक्स्ट, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक। यू मस्ट नो, यू मस्ट अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। दिस टॉपिक इज़ वेरी ईजी एंड क्वाइट यूजफुल in your practical life. Digital certificate serves as an identity of individual for a certain purpose. Please focus the line, digital certificate serve as an identity of an individual for a certain purpose. If I ask about Aadhaar card, what is Aadhaar card? So Aadhaar card simply an identity of a person name mentioned in that Aadhaar card. What is PAN card? PAN card simply shows an identity of a person whose name is mentioned in the PAN card. But PAN card is used by the income tax authorities, and rest of the authorities focus on Aadhaar card. Now, government has compulsorily said that one must link their Aadhaar and PAN. Last year, Finance Minister has introduced a new concept. If you are holding an Aadhaar card, you can simply generate your PAN card online. अब आप अपना PAN card ऑनलाइन नहीं बना सकते हैं अगर आपके पास आधार है, तो in that case that your Aadhaar and PAN card is automatically linked with each other. Okay. So, digital certificate, digital signature certificate serve as an identity of an individual for a certain purpose. अब purpose क्या है? A digital certificate can be presented electronically to prove your identity. To prove your identity or your right to access information or services on the internet. और उसी की वेबसाइट पे जाएंगे, आपको किसी कंपनी की कोई इन्फॉर्मेशन एक्सेस करनी है, देखना चाहते हैं, आप प्रेस्क्राइब फ़ी दे दीजिए और आप एक्सेस करें। लेकिन कई इन्फॉर्मेशन ऐसी होती हैं जिसके लिए आपको आइडेंटिटी नंबर देना होगा अपना, तो आपको DSC लगाना पड़ेगा, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा, तभी आपको एक्सेस ग्रांट किया जाएगा। जस्ट लाइक ए पासवर्ड की तरीके से भी आप इसको समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से ले सकते हैं। किसी डॉक्यूमेंट को सबमिट करना है तो फिर जैसे ही सबमिट करेंगे, सपोज आपको डायरेक्टर्स रिपोर्ट सबमिट करनी है ROC की वेबसाइट पर, तो डायरेक्टर का
हमको डीएससी चाहिए। जब तक डायरेक्टर का डीएससी नहीं होगा वो रिपोर्ट सबमिट ही नहीं होगी। ऐसा नहीं कि आपने पोर्टल खोला सीधे लिंक कर दिया हो गया, नहीं लिंक होगा। लिंक करने के संग संग वो जैसे ही आप उसको लिंक करेंगे वो आपकी डीएससी भी मांगेगा, डीएससी भी लिंक करिए, तब आपके डॉक्यूमेंट सबमिट हो पाएंगे। तो यू राइट टू एक्सेस इंफॉर्मेशन और सर्विसेज ऑन द इंटरनेट। डिजिटल सर्टिफिकेट आर द डिजिटल इक्विवेलेंट दैट इज इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट ऑफ फिजिकल और पेपर सर्टिफिकेट। ये तो स्टार्टिंग से पढ़ते चले आ रहे हैं। एविडेंस एक्ट की रिक्वायरमेंट है और एविडेंस एक्ट यही बोलता है कि हर चीज़ पे डिजिटल साइन होना चाहिए और साइन करने का तरीका हमारे पास डिजिटल जब डॉक्यूमेंट है तो डिजिटल साइन हमने बना लिया। डिजिटल साइन किसने बनाया? अथॉरिटीज़ ने बनाया। अथॉरिटीज़ NSDL CDSL इनका काम है, गवर्नमेंट की एजेंसीज़ हैं जो डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट बनाने का काम करती हैं। डिजिटल सिग्नेचर आपको पेन ड्राइव के फॉर्मेट में मिलता है। सिंपल सी मैं चीज़ें बराबर एक्सप्लेन कर रहा हूँ। Digital signature certificate to mean a digital signature certificate issued under subsection 4 section 35 and does not explain its meaning. DSC is issued, कोई मीनिंग इसका बताया नहीं कि कैसे होगा। पेन ड्राइव में होगा कि आपको कोड वर्ड के रूप में दिया जाएगा, सिंपली उन्होंने बताया नहीं है। DSC डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट इज इशूड बाय द अथॉरिटीज नोइंग एज ए CA मीन सर्टिफाइंग अथॉरिटीज, नॉट ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, सर्टिफाइंग अथॉरिटीज। There are 3 types of digital signature certificate based on the activity like class 1, class 2 and class 3. First time when I applied for DSC digital signature certificate, that person simply asked me, sir type 1 चाहिए, type 2 चाहिए और type 3 चाहिए। I am confused हो गए। ये मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। आई वॉज लिटिल बिट कन्फ्यूज, टाइप ऑफ डिजिटल सिग्नेचर। आई हैव रेड द IT Act बट आई रियली डोंट रिमेंबर द टाइप ऑफ डिजिटल सिग्नेचर। देयर आर टाइप 1, टाइप 2, क्लास 1, क्लास 2 एंड क्लास 3 टाइप सिग्नेचर। देन आई आस्क्ड हिम व्हाट डज दिस टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 मीन्स। अब आप भी समझिए कि टाइप 1, टाइप 2 या क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 डिजिटल सिग्नेचर होते क्या है। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं क्लास 3, 1 और 2 तक तो जनरल होता है। देखते हैं क्लास 1। क्लास 1 सर्टिफिकेट डू नॉट कैरी एनी लीगल रिकॉग्निशन सिंस इट्स वैलिडेशन इज बेस्ड ओनली ऑन द बेसिस ऑफ ए वैलिड ईमेल एंड इज नॉट बेस्ड ऑन डायरेक्ट वेरिफिकेशन। कोई वैल्यू नहीं होती, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता टाइप 1 का। हम लोग यूज़ करते हैं टाइप 2 और टाइप 3। टाइप 1 तो आप बीइंग ए स्टूडेंट आप भी अपना टाइप 1 डिजिटल सिग्नेचर बना सकते हैं। आपने देखा होगा मेल में आप अपना सिग्नेचर बनाते ही हैं। नेक्स्ट है इन केस ऑफ क्लास 2 सर्टिफिकेट द आइडेंटिटी ऑफ ए पर्सन इज वेरीफाइड ऑन द बेसिस ऑफ ट्रस्टेड प्री वैलिडेटेड या प्री वेरीफाइड डाटा। सपोज आपके पास आधार नंबर है, तो आपका आधार नंबर आधार अथॉरिटीज़ के पास सेव है, आपके फिंगरप्रिंट सेव है, आपके रेटिना का साइज डिज़ाइन सेव है और ये आपकी कंप्लीट आइडेंटिटी आधार के पास है। सभी लोग आधार कार्ड के बारे में जानते हैं। तो जब हम डिजिटल सिग्नेचर के लिए अप्लाई करते हैं टाइप 2 के लिए, तो मेरे पास हमसे आधार नंबर मांगा जाएगा। आधार अथॉरिटी से OTP जनरेट होकर मोबाइल पे आएगा। वो मोबाइल के OTP हम सर्टिफाइंग अथॉरिटीज़ को देंगे, वो फिल करेंगे। जैसे ही वो OTP वो फिल करेंगे तो मेरी कंप्लीट डिटेल खुल के आ जाएगी, मेरी फ़ोटो, मेरी पिक्चर, मेरे फिंगरप्रिंट, मेरे रेटिना का साइज़ और मेरी आइडेंटिटी वेरीफाई हो जाएगी। तो इन द क्लास केसेस ऑफ क्लास 2 सर्टिफिकेट द आइडेंटिटी ऑफ द पर्सन इज वेरीफाइड ऑन द बेसिस ऑफ ट्रस्टेड प्री वेरीफाइड डेटाबेस। आधार का डेटा प्री वेरीफाइड तो होता ही है क्योंकि 10 उंगलियों के निशान लिए जाते हैं, आँखों का निशान लिया जाता है, तो वो प्री वेरीफाइड होता है। एंड पॉइंट क्लास 3 represent the top level where a person is required to be present in front of registration authority to prove his or her identity। ठीक, जैसे हमको ऑनलाइन टेंडर के लिए अप्लाई करना है, हमको ऑनलाइन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जाके ऑफलाइन फेसलेस असेसमेंट के लिए अप्लाई करना, तो टाइप 3 हमको चाहिए।
MCA मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स 21 की जो वेबसाइट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स 21 की वेबसाइट, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट दिस वेबसाइट इन आवर टॉपिक कंपनी लॉ। तो MCA 21 इंसिस्ट ऑन क्लास 2 सर्टिफिकेट फॉर फाइलिंग डॉक्यूमेंट्स under the Companies Act and Limited Liability Partnership Act. The other authority also recognize DSC in the class 2 category and not class 1. मेजॉरिटी केसेस में क्लास 2 का ही रिक्वायरमेंट होती है, जब केवल टेंडर के लिए अप्लाई करना है, गवर्नमेंट टेंडर के लिए कहीं अप्लाई करना है, फेसलेस असेसमेंट के लिए हमको जाना है, तो वहाँ पे टाइप 3 चलता है, अदरवाइज टाइप 2 से मैक्सिमम काम हमारे हो जाते हैं। The DS digital signature is required under the Companies Act and LLP Act, Limited Liability Partnership Act, by auditors, directors, company secretaries, bankers for filing, registration and satisfaction of charges, etc. For the purpose of filing various return and documents, the DSC once issued normally valid for 1 or 2 years and can be renewed on expiry। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट नॉर्मली 1 या 2 साल के लिए इशू होते हैं और उसके बाद आप इन DSC को दोबारा रिन्यू करा सकते हैं, नॉन ट्रांसफरेबल होते हैं, आप इनहेरेंट भी नहीं कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, ड्यूटीज ऑफ द सब्सक्राइबर। सब्सक्राइबर इज अ पर्सन who has obtained the digital certificate। जिसने डिजिटल सिग्नेचर्स अप्लाई ले लिए हैं उसकी क्या ड्यूटी, उसके बारे में बात हो रही है। आप लोगों ने कॉमन सील का नाम सुना होगा। कंपनीज आर्टिफिशियल पर्सन हैव perpetual succession and a common seal, this is the definition in the is given in the Companies Act. Suppose this is a very rare case when you will see a common seal of a company, very rare case. I don't think any of the student have seen the digital signature unless until he is a student of CS, company secretaries or CA. Those students might have seen the common seal, otherwise very rare. This common seal is very rare to see. तो जैसे कंपनीज एक्ट में कॉमन सील को संभाल के सिक्योर करके रखा जाता है, वैसे ही सब्सक्राइबर की ड्यूटीज़ के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है, जनरली द की पेयर वेयर एनी डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट द पब्लिक की ऑफ विच करस्पॉन्ड टू द प्राइवेट की ऑफ दैट सब्सक्राइबर विच is to be listed in the digital signature certificate has been accepted by a subscriber, then the subscriber shall generate the key pair by applying to the security procedure। ये हमको जो हमारी अथॉरिटी होती है जो हमको इशू कर रहा है ऑटोमेटिकली बना के दे ही देते हैं। एक कॉपी उसके पास रहती है, एक हम अपने पास रखते हैं, इनकेस अगर हमसे मिसप्लेस हो जाए तो मुझसे दूसरी कॉपी ले लें। एक्सेप्टेंस और डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, देखिए सर्टिफिकेट की बात हो रही है, कोई डॉक्यूमेंट नहीं होता है, ये ध्यान रखिए। जस्ट पेन ड्राइव में एक डिजिटल सिग्नेचर आपको दिया जाता है। अ सब्सक्राइबर शैल बी डीम्ड टू हैव एक्सेप्टेड डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट इफ ही पब्लिशेस और ऑथराइज्ड द पब्लिकेशन ऑफ डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट टू वन और मोर पर्सन in a repository or otherwise demonstrate his approval of the digital signature certificate in any manner। लेटर बनने जाने किसी कंपनी के साथ, मेरे पास DSC है, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट है, तो कोई सर्टिफिकेट प्रिंटेड फॉर्म में नहीं होता है, ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। दिस इज सिंपली अ पेन ड्राइव अंडर विच देयर इज अ कोड गिवन बाय द सर्टिफाइंग अथॉरिटीज। नेक्स्ट, बाय एक्सेप्टिंग अ डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट the subscriber certifies to all who reasonably rely on the information contained in digital signature certificate that the subscriber holds the private key corresponding to the public key। प्राइवेट की मतलब जो DSC आपके पास, पब्लिक की मतलब जो सब्सक्राइबर इशूइंग अथॉरिटी के पास है। All representation made by the subscriber to the certifying authority and all material relevant to the information contained in the digital signature certificate are true। All information in digital signature certificate that is within the knowledge of issuing authority। Next, offenses and penalties। These offenses यानी कि अपराध और उससे ऊपर लगाया जाने वाला दंड बहुत डिटेल में पढ़ना है आपको। और यहाँ पे मैंने ऑफेंसेस को
हाईलाइट किया हुआ है, इसकी पेनल्टीज़ टाइम टू टाइम चेंज होती रहती हैं। और आईटी एक्ट और सेबी एक्ट में जो पेनल्टीज़ हैं वो मॉनेटरी टर्म्स में होती हैं और बहुत ह्यूज अमाउंट की पेनल्टीज़ होती हैं और इम्प्रिजनमेंट भी है इसमें, यानी कि जेल भी जा सकता है अगर कोई अपराध करता है। तो यहाँ पे हम ऑफेंसेस के बारे में बात कर रहे हैं। अपने पास किस किस तरह के ऑफेंसेस हैं? चलिए, ऑफेंसेस। साइबर क्राइम यूजुअली इंक्लूड द फॉलोइंग्स: अनऑथराइज एक्सेस ऑफ द कंप्यूटर। आप किसी कंप्यूटर को अनऑथराइज तरीके से एक्सेस करने की कोशिश कर, उसके पासवर्ड को ब्रेक कर रहे हैं। आप इनकम टैक्स में आपका कोई क्लाइंट था, वो क्लाइंट आपको छोड़ के चला गया, आप अननेसेसरी उसके पासवर्ड को ब्रेक करने की कोशिश कर रहे हैं, ये क्राइम है विदाउट द कंसेंट ऑफ योर क्लाइंट। सपोज़ मैं अपना ITR सबमिट कर रहा हूँ ऑनलाइन और मेरा फ्रेंड जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट है वो मेरे पासवर्ड को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है क्योंकि उसके पास सारी इन्फॉर्मेशन है, तो ये क्राइम है। लेकिन अगर वो सारा काम मेरी कंसेंट से कर रहा है देन ये क्राइम नहीं है। डाटा डिडलिंग, डेटा के संग आप छेड़छाड़ कुछ कर रहे हैं। वायरस और वॉर्म अटैक, सभी आप जानते हैं किसी तरीके का आप सॉफ्टवेयर बना रहे हैं जो वायरस के फॉर्म में काम कर रहा है। थेफ्ट ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम को चोरी करने की कोशिश कर रहे हैं, हैकिंग कर रहे हैं आप, हैकिंग के ऊपर भी ज़बरदस्त पेनल्टीज़ हैं। डिनाइल ऑफ अटैक्स, लॉजिक बॉम्बिंग, ट्रोजन अटैक जस्ट लाइक वायरस और वॉर्म्स की तरीके से है। इंटरनेट टाइम थेफ्ट, वेब जैकिंग एंड ईमेल बॉम्बरिंग। जैसे आप देखते हैं कि वो आपके पास वो लॉटरी वाले ईमेल आते होंगे, वो जस्ट लाइक ईमेल बॉम्बरिंग टाइप का, ये सब क्राइम है और इन क्राइम से किसी भी पर्सन को बचना चाहिए। इसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो क्राइम है, अनऑथराइज एक्सेस ऑफ द कंप्यूटर्स। आपके पास अथॉरिटी नहीं है लेकिन आप अपने कॉलेज के डेटाबेस से छेड़छाड़ करने की कोशिश कर रहे हैं, दैट इज़ एन ऑफेंस। एंड इसकी पेनल्टीज़ टाइम टू टाइम चेंज होती रहती हैं। जो भी पेनल्टीज़ हैं वो हमको एक्ट के थ्रू पढ़ने को मिलेंगी, हमने स्पेसिफिकली यहाँ पे मेंशन नहीं करी हैं। सो दिस इज़ द कंक्लूजन ऑफ ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज़ ऑफ योर IT एक्ट। थैंक यू।